Good morning, dear students. Yesterday we have learned about lipids. Today we are moving towards one more biomicromolecule, that is simple sugars. Okay. Sugars, as you are observing right now on your screen, they are considered as carbohydrates. Hydrate means the molecule which is having watery content, and carbo, that means organic. Okay. So carbon containing watery contents, okay, in general you can say these molecules are sugars. But correct scientific definition that we have elaborated the term, the correct scientific definition will be there. Sugars are sweet and water soluble carbohydrates. See, I have said we are talking about simple carbohydrates, which are sugars. Okay, they are formed of C, H, and O, that is carbon, hydrogen, and oxygen in the ratio of 1 is to 2 is to 1. Okay, so this is the general formula. Okay, so you can write down Cn, H2n. Okay, Cn, H2O, and N. Okay, so that is the general formula of the carbohydrate. Means you can write down in this way. You can write down in this way. Just a minute. Cn, H2O, N. So this is the formula of the simple sugars. Okay, CnH2ON. Okay, fine. For example, such simple sugars, that is examples are glucose, ribose, etc. There are so many number of the sugars are there. Okay, they have just given two example. You can see the structure of this glucose and ribose sugar. Okay, so generally this glucose and ribose firstly formed in a linear form, but then they are forming the circular structures. Okay, fine. Cyclic structures you can say. So these are the cyclic structures, okay, of the glucose. See, this is oxygen. This is carbon number 1. All the corners are carbons. Okay, this is carbon number 1. It is having OH, and where there is blank place, actually it is hydrogen. Okay, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो blank place है bond के साथ, वो हाइड्रोजन है. Opposite to that OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, OH. Okay, यहाँ पे hydroxyl, that is OH, and hydrogen, hydroxyl, then hydrogen, CH2OH and हाइड्रोजन. अब देखिए ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन. सो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. यहाँ पे 6 कार्बन कहाँ से है? यू कैन सी दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. तो सभी को हो सकता है ऐसा कि ऑल द कॉर्नर्स आर कार्बन, लेकिन ऐसा नहीं है. द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कॉर्नर इज occupied by oxygen. Okay, oxygen of the 5th carbon you can say. Now you can see 1, 2, 3, 4, now the 5, and this one outside the ring, it is the 6th carbon. Okay, so every time you have to remember this, don't forget about this. Now 5 carbon containing sugar, now you can see it is pentagonal structure. 5 carbon containing sugar, pentagonal. Okay, you can see over here the topmost corner is occupied by oxygen, then first, second, third, fourth, and this is the 5th carbon. Okay, the formula of the ribose is C5
H10O5. This is the formula. Ribose is a sugar which is present in structure of the DNA and RNA. Okay, ribose is the sugar which is present in the structure of DNA and RNA. Okay. So in your syllabus about sugars, only this much has been discussed. Otherwise, it is very vast topic. Okay, and in NEET also they are having some limitations के वो आपको इसके बाहर से नहीं पूछ सकते हैं. Okay. Otherwise, ये जो कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक है इज वेरी वास्ट. हाँ, आगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, वहां पे और भी कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस होने वाले हैं. बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. वी आर डिस्कसिंग, सी हमेशा याद रखिए, बायो माइक्रोमोलिक्यूल मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, तो जस्ट जैसे ही माइक्रोमोलिक्यूल्स खत्म होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल के डिस्कशन में यही ग्लूकोज, यही रिबोज वापस आने वाला है. ओके, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक. नाउ नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस. ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कलाइन कंपाउंड, नाइट्रोजन बेसिस. ओके, so these are the nitrogen containing cyclic compounds found in the nucleic acid. Nitrogen containing cyclic compounds found in the nucleic acids. Nucleic acid कौन कौन से हैं? तो nucleic acids are DNA, RNA, all these are the nucleic acids. So they are classified as follows. Purines, first class, and the second one is a pyrimidine. Nitrogen bases के दो classes हैं, purines and pyrimidines. Okay, purines जो है उसमें आपके सामने दो members हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन. ओके, प्यूरिन में दो मेंबर है, एडेनिन एंड ग्वानिन. आप देख सकते हैं उनके ब्रैकेट में एब्रीवेटेड फॉर्म भी लिखा है. एडेनिन का साइन है ए और ग्वानिन का साइन है जी. ऐसे ही pyrimidine जो है उसके तीन मेंबर है. 3 members of the pyrimidine are there. Number 1 cytosine, C is the sign. Number 2 thymine, T is the sign. And number 3 uracil, U is the sign. Okay, so in general, in total, there are 5 common nitrogen bases are there: adenine, guanine, cytosine, thymine, and uracil. उसमें से दो जो है, दो are purine. Okay, adenine and guanine. 3 are pyrimidine, that is cytosine, thymine, and uracil. अब ठीक उसके पास में आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, और उसमें भी आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे. ओके, दिस इज, यू कैन से एडेनिन. ओके, एडेनिन और ग्वानिन जो है उसमें जो डिफरेंस है, इट इज ओनली ऑफ दिस. ओके, साइड चेन का डिफरेंस है. अदरवाइज जो मदर मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं, मतलब कॉमन रिंग स्ट्रक्चर जो है, वो तो यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला है. तो ये कभी चेंज नहीं होगा. जो चेंज होगा यहीं पे चेंज आने वाला है. अदरवाइज एडेनिन एंड ग्वानिन बोथ आर सेम. ओके, नाउ प्यूरिन का आप देखिए स्ट्रक्चर, तो इट इज हैविंग डबल साइकिल्स. ओके, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर. एक पेंटागोनल रिंग है और एक हेक्सागोनल रिंग है. ओके, सो कंपैरेटिवली प्यूरिन्स आर लार्जर देन pyrimidine. क्लियर कट दिख रहा है आपको, because it is having 2 cyclic structures, 2 cyclic rings, one 5 member and one 6 member. ठीक उसके नीचे आप यूरेसिल देखिए, तो pyrimidine का मेंबर है. ओके, तो यूरेसिल में क्या है, इट इज ओनली 6 membered ring. ओके, 6 membered ring. ओके, यहाँ पे सिर्फ ये बाहर का जो साइड चेन दिख रहा है ना, वही चेंज होने वाला है. अदरवाइज एंटायर स्ट्रक्चर विल बी सेम फॉर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. साइड चेन चेंज हो जाएंगे, द मेंबर नेम विल बी चेंज. द ग्रुप हैज हैविंग a common formula, that is the 6 membered cyclic ring. Okay, so comparatively all the pyrimidines, all the 3 pyrimidines are small in size than purines. Okay,
तो दिस आर द नाइट्रोजन बेसिस। अब ये नाइट्रोजन बेसिस आपको आगे कहाँ पे मिलने वाला है, तो ऑलरेडी इसी स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है, दे आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो आपको डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में ये नाइट्रोजन बेसिस देखने मिलने वाले हैं। ओके, और इसके रिलेटेड बहुत सारे नीट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे जैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा उसमें वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज दे आर रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ओके, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेसिस जो है उसमें से जो और कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो। ओके, बहुत बार स्टूडेंट्स ट्रैप कर जाते हैं इसमें। न्यूक्लियोसाइड्स, ओके, न्यूक्लियोसाइड्स, so these are the compounds formed by linking of a nitrogen base with a sugar। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बोली है कि लिंकिंग, दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन अ नाइट्रोजन बेस। आगे आपने 5 नाइट्रोजन बेस देखे, ATGCU। ओके, यहाँ मैंने ATGCU क्यों बोला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अदरवाइज आपने जैसे अभी पढ़ा है उसके हिसाब से AGCTU। ओके, तो ठीक है, अभी AGCTU रखते हैं। ओके, तो AGCTU, दीज आर द 5 नाइट्रोजन बेसेस। उसमें से किसी एक नाइट्रोजन बेस के साथ अगर शुगर बॉन्ड कर देता है, बॉन्डिंग कंपाउंड बनाता है शुगर उसके साथ मिलके, देन इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए। ओके, जैसे अगर ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन है और उसके साथ शुगर ज्वाइन करता है, द नेम विल बी एडेनोसाइन। ओके, ऐसे नेमिंग भी इसका हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ओके, ये शुगर है, दिस वन इज अ शुगर, 5 मेंबर शुगर दिखाई है आपको यहाँ पे। कैसे पता चला है 5 मेंबर्ड है, तो कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 एंड द 5th कार्बन इज आउटसाइड द रिंग, तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और उसके फर्स्ट कार्बन पे आप देखिए एडेनिन अटैच हो चुका है, तो दैट इज एडेनोसाइन। ओके, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है A प्लस शुगर। और ये भी फिक्स है कि एवरी टाइम द नाइट्रोजन बेस इज गोइंग टू अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन, अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन। ये नीट क्वेश्चन है। ओके, ऑन विच कार्बन ऑफ द शुगर नाइट्रोजन बेस इज गोइंग टू अटैच, 1 2 3 4 5, so the it is first carbon with which any nitrogen base is going to attach। Okay, so adenosine। guanine plus sugar, गुआनोसाइन, ये नाम आपको याद रखना है, आगे डिस्कशन में आने वाला है, वापस रिपीट होके ये सभी चीजें इसी चैप्टर में, when we are going to study about DNA and RNA। cytosine plus sugar, that is cytidine। okay, thymine plus sugar, thymidine। uracil plus sugar, यूरिडिन। अब आप देखिए लेबलिंग कैसे हुआ है, एडेनाइन ग्वानाइन, ओके 99, तो उसका साइन हो चुका है यहाँ पे दोनों के लिए, एडेनोसाइन ग्वानोसाइन। बहुत बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, तो ये क्या कर देते हैं, साइटोसिन ऑलरेडी है, देखिए वही स्पेल कर रहा है, ऐसा ही यानी यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा ही यानी है। ओके, तो साइन माइन सेल, ओके, इन सबका क्या हो जाएगा, डाइन। ओके, DINE। ओके, तो ये ऐसे याद रख देना है आपको। प्यूरिन्स के लिए साइन हो जाएगा, पिरिमिडिन्स के लिए डिन हो जाएगा या डाइन हो जाएगा। ओके, तो साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन। ओके, दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ द, यू कैन से, पिरिमिडिन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए अगेन द 5 मेंबर रिंग, दैट इज द शुगर, यहाँ पे ये शुगर है 5 मेंबर रिंग, और उसके फर्स्ट कार्बन पे यूरेसिल अटैच हुआ है, तो इट हैज फॉर्म्ड यूरिडिन। तो U plus sugar, that is uridine। Okay, so this is the formula, this is the structure, these are the names of nucleosides। Okay, तो ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये 12th में भी रिपीट होगा। ओके,
नाउ न्यूक्लियोसाइड में से न्यूक्लियोटाइड, याद रखिए मैंने वर्ड यूज किया न्यूक्लियोसाइड्स में से न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेंगे और बाद में न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या था, तो आपके पास शुगर्स थे, आपके पास नाइट्रोजन बेसिस थे, एनी नाइट्रोजन बेस एंड अ शुगर हैज बीन जॉइंड, ओके, और ये बन गए न्यूक्लियोसाइड। अब उसके साथ कुछ और जोड़ने वाला है, देन इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। नाउ यू कैन सी, so these are the compounds formed by linking of a nucleoside, linking of a nucleoside, nucleoside जैसे ही वर्ड आता है दिमाग में याद करिए, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, okay, that linking of a nucleoside, that is nitrogen base plus sugar with a phosphate group, okay, PO4 3 minus, okay। तो न्यूक्लियोटाइड में एक तीसरी चीज ऐड हुई है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें थी, टू कंपाउंड्स वर अटैच्ड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, उसमें आप फॉस्फेट ग्रुप भी अगर ऐड करते हैं देन इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। समझिए, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर और फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। ये नीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ऐसे अलग अलग वर्डिंग में। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए, ओके। फॉस्फेट सबसे एंड में आता है, ये याद रखना है। अब देखिए, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे वहां पे न्यूक्लियोसाइड के नेम थे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के भी ऐसे ऐसे नेम हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन बेस आपका एडेनिन है प्लस शुगर इज गोइंग टू अटैच प्लस फॉस्फेट इज देयर, तो देखिए एडेनिन और शुगर, इसके लिए तो वर्ड ऑलरेडी हमारे पास है एडेनोसाइन, याद करिए लास्ट स्लाइड, ओके। एडेनिन प्लस शुगर, तो उसके लिए तो हमारे पास वर्ड है दैट इज एडेनोसाइन विच इज अ न्यूक्लियोसाइड। और अब फॉस्फेट जुड़ा है तो ये हो जाएगा एडिनेलिक एसिड, ओके, इट इज कॉल्ड एडिनाइलिक एसिड, ओके। देखिए अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, इट इज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन है और फिफ्थ कार्बन पे आप देखिए, फिफ्थ कार्बन दैट इज द सी, उसके बाद PO4 3 माइनस जुड़ा है, ओके, उसके बाद PO4 3 माइनस जुड़ा है, ओके। तो फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस। याद रखिएगा, नीट क्वेश्चन, फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट। ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इट इज guanilic acid, okay, guanine plus sugar plus phosphate is a guanilic acid। cytosine plus sugar plus phosphate, that is cytidilic acid। thymine plus sugar plus phosphate is a thymidilic acid, okay। नेम्स में जो सफिक्स रहने वाला है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म चल रहा है, ओके। यूरेसिल प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज यूरिडिलिक एसिड, ओके। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स के भी नेम हैं, ओके। मतलब आप देखिए, एडेनिन प्लस शुगर, वैसे उसका नाम एडेनोसाइन था लेकिन फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनिलिक एसिड हो गया। फॉस्फेट क्यों, फॉस्फेट जुड़ा तो ये सभी एसिड कैसे बन गए, ओके, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, ओके। यहाँ पे H2PO4 हो रहा है ना, आप देखिए H2P एंड 4 बार O, दैट इज H2PO4, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से यहाँ पे ये एसिड बन चुके हैं, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड के करेक्ट नेम है, ओके। एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड, ओके। लेकिन स्टोरी अभी यहाँ तक खत्म नहीं हो रही है।
तो न्यूक्लियोटाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं, हमने देखा अभी, राइट। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ, दिस इज द डीएनए, ओके, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि nucleotides are, see, nucleotides are building blocks of the DNA and RNA. Nucleotides are building blocks of the DNA and RNA. उसमें से आपको यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर का जो है इस स्ट्रक्चर में, रेड कलर को आप फाइंड आउट करें तो रेड कलर का साइन है दैट इज एडेनिन। फिर ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज गुआनिन, ग्रीन कलर का है दैट इज थाइमिन, और ब्लू कलर का दैट इज साइटोसिन। अब देखिए जहां जहां पे एडेनिन है, ये एडेनिन मतलब रेड कलर, वहां पे उसके ऑपोज में हमेशा आपको ग्रीन कलर देखने मिलेगा, ओके, बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ओके, डबल स्ट्रैंड बनते ही ऐसे हैं, ओके। एडेनिन है, उसके ठीक सामने आपको अपोजिट पे थाइमिन देखने मिलेगा हर जगह पे, और ग्वानिन है, उसके ऑपोज में आपको साइटोसिन देखने मिलेगा, ग्वानिन के अगेंस्ट में आपको साइटोसिन देखने मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे मैं आपको तब वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करें तब आपको ये क्लियर होने वाला है, राइट। लेकिन अभी इसलिए मैंने बताया कि आप देखिए, सिर्फ याद रखिए एडेनिन के अपोज में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में थाइमिन होता है और ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री में साइटोसिन होता है, एंड दिस इज वाइस वर्सा। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर बनता कैसे है, यू कैन सी, देखिए ये यहाँ पे दिखा है सी, दैट इज साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन। अब आप यहाँ पे देखिए साइटोसिन, ओके, ये साइटोसिन है, ये शुगर है, ओके, और इसके फिफ्थ कार्बन पे ये फॉस्फेट है। अब उसके नीचे यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहा है, उसका फिफ्थ कार्बन देखिए, उसके फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट है, अच्छे से ऑब्जर्व करिए डीएनए का चेन बनता कैसे है। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें ये नाइट्रोजन बेस्ड साइटोसिन, ये शुगर, ये फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन वाला, अब जुड़ता कैसे है, तो उसके ठीक नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, और उसका जो 5 फॉस्फेट है, 5 नंबर के कार्बन पे, फिफ्थ नंबर के कार्बन पे, वो थर्ड नंबर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। थर्ड नंबर के कार्बन मतलब किसका, प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड नंबर का कार्बन, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके, और ये जुड़ जाएगा, एंड ऐसे ही चेन पूरा बनता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट जो है वो उसके प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पूरा चेन बनता है। ये चेन जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का चेन या ये ब्लू कलर का चेन, ये ऐसे ही बना है, ओके। ये पूरा यही वाला स्ट्रक्चर है, और सेंटर में आप देखिए तो नाइट्रोजन बेसिस है, ओके। तो आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, तब ये पूरा और डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने का ट्राई किया है। Okay, so we have completed with bio micromolecules, and now we are moving towards bio macromolecules. Bio macromolecules. Okay. So bio macromolecules क्या है? Bio macromolecules are the biomolecules having molecular weight greater than 1000 डाल्टन। ये चैप्टर जब हमने शुरू किया था तब ये बात हुई थी, ओके। व्हाट दे इंक्लूड, बायो मैक्रोमोलेक्यूल में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, तो एक तो है प्रोटीन, फिर पॉलीसेकेराइड्स,
फिर न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, polysaccharides and nucleic acids. These three are the biomacromolecules in general. Their molecular weight is 10,000 Dalton and above. Definition क्या कहती है? More than 1,000 Dalton and above हो तो आप उसको बायोमैक्रोमोलेक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है कि लैक्स में इनका मॉलिक्यूलर वेट कभी कभी होता है, लेकिन इन जनरल ये है कि इट इज हैविंग मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन, मतलब 10 किलो डाल्टन से भी ज्यादा। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन याद करिए, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, acid insoluble fraction which is macromolecular fraction includes macromolecules from cytoplasm and cell organelles। आपने एसिड के अंदर पूरा उसको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में फ्रैक्शन बनाया था पूरा सेल का क्रश करके, ओके, फिर उसको फिल्टर आउट किया था, जो फिल्टर आउट होके फिल्ट्रेट में चला गया, दैट इज माइक्रोमोलेक्यूल, बायो माइक्रोमोलेक्यूल। और जो ऊपर रह गया, ओके, सॉलिड इनसॉल्युबल विच इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। और ये जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है ये जो है कहाँ से आया है? तो साइटोप्लाज्म में ऐसे जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मतलब प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वो भी उसमें होंगे, एज वेल एज ऑर्गेनल्स के अंदर भी जो है ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, वो भी सारे के सारे यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, फाइन। लिपिड के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि देयर इज अ डिस्कशन that whether it should be considered in a micromolecule or in a macromolecule, because आपने देखा था लिपिड में कितने बड़े बड़े कार्बन चेन है, ओके, C17, C18, C20 एंड मोर देन दैट, तो फिर वो तो मैक्रोमोलेक्यूल होना चाहिए। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक जस्टिफिकेशन दिया गया है। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलेक्यूल, स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलेक्यूल, मतलब कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। डेफिनेशन क्या कहती है? मोर देन 1000, ओके, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट 8000 डाल्टन से 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं जाता है। बट इट कम्स अंडर एसिड insoluble fraction because many lipids are arranged into structures like cell membranes, okay। लिपिड कभी भी आपको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं मिलने वाले हैं, इट विल रिटेन्ड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ओके, बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया ही है, ये आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर द phospholipids, right? When a tissue is grinded, cell membranes are broken। जब हम टिश्यू को ग्राइंड करेंगे तब तो सेल मेम्ब्रेन पूरा रप्चर हो ही जाने वाला है, and form water insoluble vesicles, okay, it form water insoluble vesicles। The reason is it is lipid, वो कभी भी watery content में mix होने वाला नहीं है, and so they cannot be filtered along with the acid soluble fraction, okay। तो फिर आप उसको वैसे भी filter out नहीं कर सकते हैं, because there will be repulsion between the watery content of the acid as well as the watery content of the cytoplasm, so obviously it is not going to be filtered out, it will be retained on the filter, okay, in a as a in the form of the insoluble vesicles, okay, जिसको मिसल्स बोलते हैं, okay, ऐसे फॉर्म में वो वहां पे रहने वाले हैं। फाइन। नाउ एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल क्या है एक लिविंग सेल के लिए? सो वाटर की कंटेंट हो सकती है 70 to 90% इन अ नॉर्मल सेल, हेल्दी सेल। प्रोटीन कंपोजिशन होता है उसका नियर अबाउट 10 to 15% इन अ सेल। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? तो इट इज नियर अबाउट 3%।
न्यूक्लिक एसिड्स कितने होते हैं, तो इट इज नियर अबाउट 5 to 7%. आयंस, ओके, मिनरल्स, तो मिनरल्स आर अराउंड 1%. ओके, तो एक सेल में आप देखिए मैक्सिमम इज वाटर, 70 to 90% इज वाटर. Second main component is protein, that is 10 to 15%. The third one is a nucleic acid, 5 to 7. The next one followed by that is carbohydrate, around 3%, and the ions which are considered as inorganic metal ions, and so that, okay, जिसको आप minerals बोल सकते हैं, those are around 1%. So this is the average composition of the cell. ओके, तो ये नीट में पूछा जाता है. ओके, ये पूरा जो टेबल है उसमें से किसी को भी उठा के पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ हेल्दी सेल. तो ये आपके सामने ऑलरेडी ऑप्शंस हैं सभी आंसर में. ओके, प्रोटीन का क्या होता है, यही ऑप्शन रहेंगे. न्यूक्लिक एसिड, वाटर का नहीं पूछेंगे, बहुत इजीली याद रह जाता है, इसलिए वाटर का कभी नहीं पूछेंगे. लेकिन क्या पूछेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में और आयन के बारे में तो पूछ सकते हैं. इसको निकाल के आप मैच द फॉलोइंग भी करवा सकते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, प्रोटीन से लेके आयंस तक. ओके, इसको, इस कॉलम को पूरा जगल अप कर सकते हैं, राइट. तो ये नीट क्वेश्चन बन सकता है, राइट, और पूछा भी गया है, पूछे भी जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं चैप्टर, बिकॉज इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स. अगर आज हम प्रोटीन शुरू करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एंड आई विश के एक पूरे फ्लो में एक मॉलिक्यूल के बारे में खत्म होना चाहिए, बिकॉज ऑफ डिस्कशन लेंदी चलने वाला है. मैक्रो मॉलिक्यूल के डिस्कशन इतने लेंदी नहीं थे. देन ऑल्सो एमिनो एसिड्स और लिपिड्स के लिए पूरे एक एक लेक्चर हमने डेडिकेट किए, तो ऑब्वियस है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और डीएनए आरएनए के लिए वैसे भी डिस्कशन लेंदी चलने वाला है. सो वी आर एंडिंग ओवर हियर. ओके, प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियोस, ओके, अगेन एंड अगेन. द रीजन इज ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. अगर आपकी रिदम टूटी तो चाहे यहाँ से कितना ही अच्छा क्यों पढ़ाने में ना आए, चाहे आपको कितना ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड ना किया जाए, लेकिन अगर रिदम टूट गई इस चैप्टर में तो फिर आप कंफ्यूज होंगे. ओके, सो रूटीनली, डेली, रेगुलरली आप लेक्चर्स को, वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए. ओके, फाइन. तो हैव अ नाइस डे.